روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ حضرت علامہ مولانا دلشاد حسین صاحب پرنسپل مدینہ العلوم عربی کالج تو آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ الفاتحہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم یا من لہ النور وفیہ النور وعنہ النور ویا نور لک الحمد سرمدا صلی علی سراجک المنیر وآلہ ابدا یا نور ویا نور النور ویا نورا قبل كل نور ویا نورا بعد كل نور ویا نورا في كل نور ویا نورا على كل نور لك النور وبك النور روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ وأنت النور ونور النور ونور على نور صلى الله تعالى على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ووكيلنا وكفيلنا وسندنا ومولانا محمد نورك الأنور وعلى آله السرج الغرر وصحابته مصابيح الزهر صلاة تجعل لنا بها في قلوبنا نورا وفي عيننا نورا وفي لساننا نورا وفي أشفاهنا نورا وفي صدورنا نورا وفي أجسامنا نورا وفي أرواحنا نورا وفي ديننا نورا وفي إيماننا نورا وفي قبورنا نورا روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ يا نور الملك الحق المبين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ باوقار علماء اہل سنت، قابل صد احترام شعراء کرام، لائق صد مبارکباد حاضرین نسل ہاشمیہ، آپ کو کچھ خبر ہے؟ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ اب 2 ہی بجیں گے، ابھی 1 بجے گا، پھر اس کے بعد دوسرا بجے گا۔ ابھی آپ مجھ سے پیشرو خطیب استاد العلماء مفتی بہار حضرت علامہ مولانا عبدالحفیظ صاحب مدد اللہ نورانی کی علمی اور نکاتی تقریر سماعت فرما رہے ہیں، اور ان سے قبل راجستھان کی مرکزی درسگاہ کے مثالی مدرس حضرت فیاض ملت مولانا فیاض احمد صاحب قادری مدد اللہ العالی اپنے علم و فن کو مختصر وقت میں اس طرح پیش فرما رہے تھے جیسے کوزے میں سمندر سمجھتا ہے۔
لیکن حضرات آج میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا. مقررین میں سب سے چھوٹا میں اور سب سے بڑے مفتی صاحب. لیکن یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے جس کو جس وقت بھی سنا ہے زندگی کے ساتھ سنا. میرے ساتھ کچھ شکایتیں وابستہ ہیں. تیسرے سال ہماری تقریر سے آپ کو شکایت رہ گئی تھی کہ میں نے اپنا بیان مختصر کیا. میں چاہتا ہوں کہ شکایت کا رخ موڑ دیا جائے. آپ خوش ہو جائیں, مقررین ناراض ہو, لیکن انہیں منایا جا سکتا ہے, عوام کو منانا بہت مشکل. حضرت مفتی صاحب روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ یہ قرآن کی حفاظت پر گفتگو فرما رہے تھے. حضرت مولانا فیاض احمد صاحب قبلہ اپنے علم و فضل کا دریا اپنی پوری فیاضی کے ساتھ بہا رہے تھے. میں دلشاد ہوں, کوشش کروں گا کہ آپ کا دل شاد ہو جائے. بہت بڑی نمک حرامی ہوگی اور احسان فراموشی ہوگی کہ راجستھان میں بزم سجے اور غریب نواز کا نام نہیں لیا جائے. حضرات, میں چند منقبت کے اشعار کے تحفے لے کر آپ کے لیے آیا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو اسے سنا دیا جائے. تو ذرا ہاتھ اٹھائیے, کتنے لوگ سننا نہیں چاہتے. کچھ ہمارے دوست بھی موجود ہیں. ہر محفل میں اپوزیشن کے لوگوں کا ہونا ضروری ہے. جب تک اپوزیشن نہیں ہوتی ہے پوزیشن نہیں سمجھ میں آتی. سنی جوش میں ہوش کھو دیتا ہے. آئیے آنکھوں کو بند کیجیے اور اس تصور کے ساتھ اس منقبت کو سماعت فرمائیے کہ اب یہ جلسہ شجان گڑھ میں نہیں, اجمیر کی گلیوں میں لگا ہوا. اور اس سال ہم دیوانوں نے اپنے خواجہ ہند کے راجا سیدنا معین الدین چشتی بہشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کا کون سا عرس کیا ہے؟ ذرا زور سے کہہ دو بھائی. 786. آئیے 10 لاکھ کا امٹتا ہوا سیلاب غریب نواز کی بارگاہ میں کیا کہہ کہہ کے حاضری دے رہا تھا. ملاحظہ فرمائیے. یہ اشعار نہیں ہے, میرے دل. روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. آئیے بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شراب معرفت کا دیکھنے میں کھانا آیا ہے. شراب معرفت کا دیکھنے میں کھانا آیا ہے. شراب معرفت کا دیکھنے روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ ہے. اور بڑی حسرت لیے بڑی حسرت لیے خواجہ تیرا دیوانہ آیا ہے. حضرات, جتنا غریب نواز کے روزے کو تصور میں رکھ کر کے سماعت فرمائیے گا اتنی ہی لذت زیادہ ملے گی. شراب معرفت کا دیکھنے میں کھانا آیا ہے. بڑی حسرت لیے بڑی حسرت لیے خواجہ تیرا دیوانہ ہے.
معرفت کا دیکھنے میں کھانا آیا ہے. روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. گلوں کے ہارے ہاتھوں میں زباں پر خواجہ یا خواجہ. گلوں کے ہارے ہاتھوں میں زباں پر خواجہ یا خواجہ. گلوں کے ہارے ہاتھوں میں زباں پر خواجہ یا خواجہ. اور اشکوں کا لیے اور اشکوں کا لیے آنکھوں میں یہ نذرانہ لایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا ارشاد کہتا ہے کھانے میں کھانا آیا ہے. بڑی حسرت لیے بڑی حسرت لیے خواجہ تیرا دیوانہ آیا ہے. شراب معرفت کا دیکھنے میں کھانا آیا ہے. ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں. روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. کو جی بھر کر کھلائے دعاؤں کو اجمیر ہم رندوں کو جی بھر کر پلائے. ساقی اجمیر ہم رندوں کو جی بھر کر. سنا ہے طیبہ سے سنا ہے طیبہ سے بھر کر تیرا پیمانہ آیا ہے. معرفت کا دیکھنے میں کھانا آیا ہے. پلائے ساقی اجمیر ہم رندوں کو جی بھر کر. سنا ہے طیبہ سے سنا ہے طیبہ سے بھر کر تیرا پیمانہ آیا ہے. شراب معرفت کا روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. آیا ہے. شراب معرفت کا دیکھنے میں کھانا آیا ہے. درود شریف سنائیے. اللهم صل وسلم على سيدنا صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب آپ کے تصورات مضبوط ہو گئے ہیں تو آئیے بیک زبان ہو کر یہ عرض کیا جائے غریب نواز کی بارگاہ میں کہ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز. غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز. کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. اور وہ اس لیے کرو کہ تمہارے در سے ہمارا بڑا تعلق ہے. تمہارے در سے ہمارا بڑا تعلق ہے کہ ہم غریب بڑے تم بڑے غریب نواز. کہ ہم غریب بڑے. روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. تو اس سال ہم لوگوں نے غریب نواز کا کون سا عرس کیا؟
सुबहान अल्लाह, ये किसका आदत है? बिस्मिल्लाह शरीफ का ये आदत। और उर्स कितने दिन से हो रहा है गरीब नवाज का? 786 साल से उर्स हो रहा है। आज अगर हम महबूब इलाही का उर्स करें तो दुनिया कहती है ये बरेलवी है। हमारा बरेली तो सिर्फ 150 साल का है। 150 साल से जानती है, आला हजरत के वजूद से जानती है। लेकिन क्या कहिएगा आला हजरत की मकबूलियत को, क्या कहिएगा बारगाहे रसूल से अता की हुई नेमत गैर मुतरक्किबा को, बारगाहे नबी से मिली हुई सनत को, कि उर्स दुनिया के चाहे जिस कोने में बनाया जाए, पाकिस्तान में उर्स हो बाबा फरीद का, दुनिया कहे ये बरेलवी है। पाकिस्तान में उर्स हो हजरत दातागंज बख्श लाहौरी का, दुनिया कहे ये बरेलवी है। बांग्लादेश में उर्स हो शाह अब्दुल हई चाडगामी का, दुनिया कहे ये बरेलवी है। इराक में उर्स हो गौसे आजम का, दुनिया कहे ये बरेलवी है। गोया इन तमाम बुजुर्गों ने इमाम अहमद रजा को ऐसी सनद अता फरमाई रोशन है, अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। होगा मुहर बरेली की लगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। मगर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये उर्स बरेली की इजाद नहीं है, ये उर्स बरेली की पैदावार नहीं है, ये उर्स इमाम अहमद रजा की बिदात नहीं है। अमा आला हजरत ने, हम तो आज उर्स कर रहे हैं गरीब नवाज का, मगर गरीब नवाज का उर्स हजरत बख्तियार काकी ने किया है। गरीब नवाज का उर्स हजरत निजामुद्दीन औलिया ने किया है। गरीब नवाज का उर्स हजरत बाबा फरीद ने किया है। गरीब नवाज का उर्स हजरत साबिर कलियरी ने किया है। गरीब नवाज का उर्स और मशाइखीन कराम ने किया है। और सारा भारत गरीब नवाज का उर्स कर रहा है। और गरीब नवाज ने उस्माने हारूनी का उर्स किया है। गरीब नवाज ने उस्माने हारूनी का उर्स किया है। आज सारी दुनिया गौसे आजम का उर्स मना रही है। और गौसे आजम ने बू सईद मखदूमी का उर्स किया है। बू सईद मखदूमी ने अपने अकाबरीन का उर्स किया है। इमाम जाफर ने इमाम बाकर का उर्स किया है। इमाम बाकर ने जाफर तैयार का उर्स किया है। हजरत इमाम जाफर ने हसन बसरी का उर्स किया है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने अपने मशाइखीन का उर्स किया है। और कमाल की बात तो ये है कि मौला अली ने उस्मान गनी का उर्स किया है। उस्मान गनी ने फारूक आजम का उर्स किया है। फारूक आजम ने सिद्दीक अकबर का उर्स किया है। और सिद्दीक अकबर ने मुस्तफा का उर्स किया है। ये उलमा का जिम्मेदार स्टेज है। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल पुरमलाल हुआ। 40 रोज जब सरकार के विसाले मुबारक के गुजरे तो उर्स वही करता है जो सज्जादा नशीन होता है। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। खलीफा अकबर, खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 40वें रोज सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मजमा इकट्ठा करते हैं। खाने का भी एहतमाम होता है, या हिंदुस्तान की जबान में कह दो लंगर का एहतमाम होता है। खाने का एहतमाम होता है, महफिल मुनक़िद होती है। सिद्दीक अकबर खड़े होते हैं, जो जानशीन थे मुस्तफा के, जो सज्जादा थे मुस्तफा के, जो नायब अकबर थे मुस्तफा के, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरानी पर रोशनी डालते हैं। नबी की ज़ात बयान हो रही है, नबी की सिफात बयान हो रही है, नबी के मोजज़ात बयान हो रहे हैं, मुस्तफा की सुबह शाम बयान हो रही है, नबी का इशार बयान हो रहा है, मुस्तफा की शफ़क़तें बयान हो रही है, सरकार की रहमतें बयान हो रही है, मुस्तफा के इख्तियारात बयान हो रहे हैं। और अकीद में ऐलान फरमाते हैं सिद्दीक अकबर, मालूम ये हुआ कि उर्स का ऐलान करके सिद्दीक अकबर ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के अकीदे का भरम रख लिया है और दुनिया को ये बता दिया है कि उर्स करना ये सुन्नियों का नया तरीका नहीं बल्कि सहाबाए किराम की सुन्नत है। जब सिद्दीक अकबर नबी का उर्स न छोड़े, फारूक आजम अबू बकर का उर्स न छोड़े, उस्मान गनी उमर का उर्स न छोड़े, मौला अली उस्मान गनी का उर्स न छोड़े, हजरत गौसे आजम बू सईद मखदूमी का उर्स न छोड़े, गरीब नवाज उस्मान हारूनी का उर्स न छोड़े, बख्तियार काकी गरीब नवाज का उर्स न छोड़े, बाबा फरीद बख्तियार काकी का उर्स न छोड़े, निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद का उर्स रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। छोड़ेगा दुनिया बंद क्यों
करने में लगी है, हम औलिया का उर्स मनाने में लगे हैं। और ये बंद का चक्कर सुनो मियाँ, इस साल खुदामे कराम ने एक इंतखाब किया है, मैं इस जिम्मेदार मजमे में उसका इंतखाब करना चाहता हूँ। एक आदमी ने बताया मौलाना इस साल 1 लाख फॉरेन से आने वाले गरीब नवाज की बारगाह में जायरीन को पासपोर्ट पर वीजा नहीं लगाया गया, उन्हें गरीब नवाज के उर्स में आने से रोक दिया गया। सिर्फ सीबीआई की एक रिपोर्ट पर तो ये 1 लाख जो लीबिया से, जर्मन से, टर्की से, सूडान से, कनाडा से, ब्रिटिश से, अमेरिका से ये 1 लाख की तादाद आ रही है। इन्हें रोको, हम भारत के लोगों पर बैंड लगा सकते हैं, लेकिन ये 1 लाख आने वाले सिर्फ अजमेर में चादर चढ़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं, सिर्फ गरीब नवाज के उर्स में नहीं आ रहे हैं, सिर्फ गरीब नवाज की दरबार में अपनी अकीदत का नजराना पेश करने नहीं आ रहे हैं। सीबीआई ने रिपोर्ट लगाई कि ये 1 लाख आने वाले इनको वीजा न दिया जाए, इसलिए कि ये चादर चढ़ाएंगे गरीब नवाज के मज़ार पर और सजदा करने के लिए कहीं और चले जाएंगे। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। इबादत करने के लिए कहीं और चले जाएंगे। रोक दिया गया शुबहे की बुनियाद पर, मगर दिलशाद अहमद रजवी इसी भारत की गवर्नमेंट और सीबीआई रिपोर्ट को ये दावते नजारा और चैलेंज करना चाहता है कि लोगों तुमने 1 लाख गरीब नवाज के वर्कर को तो रोक दिया है, मगर याद रखना कि गरीब नवाज के दरबार से अगर कोई सजदे की तहरीक चली तो भारत है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और इसलिए नहीं रोक सकती कि भारत में अगर कोई इंकलाब आया है, भारत में अगर कोई इस्लाम की तहरीक उठी है, भारत की पेशानी पर अगर तहरीक का पहला हर्फ कहीं से लिखा गया है तो वो कोई और दरबार नहीं, वो मेरे ख्वाजा का दरबार है। आने वाला एक आया था, आने वाला तन्हा आया था, हाथ में सिर्फ तस्बीह थी, बगल में फकत मुसल्ला था, इससे रसूल की नेमत लेने के लिए आया था। और जब तुमने उसको बंद करना चाहा तो उस आने वाले एक ने 25 करोड़ कलमा पढ़ने वालों को पैदा किया। और दोस्तों ये बंद का चक्कर तो बड़ा पुराना है, ये सरकार ही के जमाने से चल रहा था। सरवरे कायनात और उनके गुलामों को शेबे अबी तालिब ने बंद कर दिया गया और 1-2 दिन नहीं पूरा चिल्ला 40 दिन तक बंद किया गया। 40 रोज तक तालिब की घाटी में रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। नबी को बंद कर दिया गया और इसलिए बंद कर दिया गया था जब इन्हें पानी नहीं मिलेगा, जब इन्हें खाना नहीं मिलेगा, जब इनके वसाइल के दरवाजे बंद रहेंगे तो ये वहीं बेचैन होकर के लोट पोट होकर के मर जाएंगे। 40 दिन होगा, इनका भी 40वां होगा, मगर तारीख गवाह है अरब की सरजमीन पर जब शेबे अबी तालिब की घाटी का हिसार खोला गया है और 40 रोज के बाद अबू तालिब की घाटी खोली गई है तो आगे आगे नबी मुस्कुरा रहे थे, पीछे पीछे गुलामाने नबी मुस्कुरा रहे। इस्लाम वहां भी नहीं रुका, आगे बढ़ा और दुश्मनों ने देखा कि मेरा बंद यहाँ नाकाम हो गया तो सोचा चलो नबी के जमाने में बंद कामयाब न हुआ, आले नबी के जमाने में आजमा के देखा जाए। करबला में आले नबी के पानी बंद किया गया, बंद कर दिया गया पानी। और जब पानी बंद किया गया तो इमाम अली मकाम ने सब शुक्र का मुजाहिरा फरमाया, सब्र इस्तिकामत का मुजाहिरा फरमाया और सारी दुनिया को ये बता दिया है लोगों आओ मेरे खेमे में, पानी बंद है, खाना बंद है, जिंदगी के सारे असबाब बंद है, वसाइल बंद है, मगर कुरान की तिलावत नहीं बंद है, नबी का पैगाम नहीं बंद है, इस्लाम का उसूल नहीं बंद है, नबी की शरीयत नहीं बंद है। इमाम अली मकाम ने अपने सब्र का मुजाहिरा फरमाया और जामे शहादत नोश फरमाई, इस्लाम वहां से दिया गया। ये वहां भी नाकाम हो गए और जब वहां नाकाम हो गए तो सोचा नवाज के जमाने में एक बार आसमान से देखा जाए तो मेरे ख्वाजा पर भी पानी बंद कर दिया गया, मेरे ख्वाजा पे भी पानी बंद किया गया। और जब गरीब नवाज से पानी बंद किया गया तो गरीब नवाज ने अपनी ज़बान हाल से फरमाया अब हम रीत बदल देंगे, ये करबला नहीं है, ये गर्दन दे दी जाए, ये करबला नहीं है, रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। का मुजाहिरा कर लिया जाए, इसलिए कि जैसा मुकाबिल होता है वैसे ही दिफा होती है, जैसा वार होता है वैसा ही डिफेंस होता है, जैसा अटैक होता है वैसे ही हिफाजत होती है। करबला की सरजमीन पर इमाम अली मकाम के मुकाबले में ये थे और गरीब नवाज के मुकाबले में ये नहीं थे, ये थे
तो गरीब नवाज ने अपनी रीत बदल दी और दुनिया को बताया है लोगों, जब कलमा गो के मुकाबले में कलमा गो होता है तो सब्र और इस्तिकामत से इस्लाम फैलाया जाता है, और जब कलमा गो के मुकाबले में ये नहीं ये होता है तो वहाँ शहादत से नहीं, वहाँ करामत से इस्लाम फैलाया जाता है, वहाँ इक़्तिदार से इस्लाम फैलाया जाता या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वहाँ पावर से इस्लाम फैलाया जाता है, वहाँ नबी का इख्तियार जो मरते में वसीयत कर दिया गया था, अताए रसूल को करके आए थे ना मेरे खाजा, तो सामने अस्तिया सरकार क्या होगा का क्या हुआ, का हुजूर पानी बंद कर दिया गया, वजू कैसे होगा, पिएंगे कैसे, गरीब नवाज ने अपने विलायत की करवट की इरशाद फरमाया, जीना भी इसी से है और जीना भी यही है, समंदर पार नहीं जाना है, अब यही रहना है। अपना कटोरा हाथ पे रखे हुए मुरीद की तरफ बढ़ाया और इरशाद फरमाया, ले जाओ कह देना आना सागर से चल, तुझे खाजा ने बुलाया है। सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। राजा ने अपना प्याला किसकी तरह बढ़ाया, मुरीद की तरफ, किसकी तरह बढ़ाया, जरा पूरा मजमा कह दे, मुरीद की तरफ। तो मुरीद ने एक बार प्याला देखा, एक बार पीर का चेहरा देखा, अल्लाह अल्लाह, वो मुरीद नहीं था, वो मुराद था। अच्छा, आजकल पीर साहब लोगों का बड़ा अजीब हाल है। भारत में एक से एक पीर हैं, लोहा पीर, लक्कड़ पीर, सग्गड़ पीर, पांदान पीर, ओगलदान पीर। बम्बई में एक साहब मुरीद हो गए और आकर के अपनी बेगम से कहा, सुन मैं मुरीद हो गया हूँ, तुमको भी मुरीद होना है। औरत ने सर पकड़ लिया, या अल्लाह, सुबह शाम दारू पीने वाला तेरी मुरीदी की बात कर रहा है, अरे किससे मुरीद हो गया? कहा बहुत बड़ा पीर है, अंग्रेजी में नाम है उसका। क्या नाम है? कहा डिस्को बाबा। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। सर पकड़ लिया, बैठ गए। कहा रे बेवकूफ, अबे मुरीद होने से पहले ये देखा जाता है पीर साहिब निस्बत है कि नहीं, साहिब सिलसिला है कि नहीं, साहिब तकवा है कि नहीं, साहिब जोद है कि नहीं, साहिब रियादत है कि नहीं, साहिब दिल है कि नहीं, साहिब कश्फ है कि नहीं, साहिब नजर है कि नहीं। और तू मुरीद हो गया, कुछ नजर आया? कहाँ नजर की बात करती है। हम लोग आपस में बैठे थे और दौर चल रहा था, ये बाबा खड़ा हो गया और कहता है दूर दूर। हम लोगों ने पूछा, बाबा ये क्या हो रहा है? कहा वो खाने काबा का दरवाजा खुला हुआ था, एक कुत्ता घुस रहा था, मैंने यहीं से हाँक दिया। हाथ रखा, ठंडी आंख हुई, कहा बदमाश, वो पीर है या पीर घोटाला? औरत ने कहा अच्छा ऐसा करो, कल उसकी दावत करो, हम भी सोचेंगे समझेंगे, जांचेंगे परखेंगे, दिल आएगा तो हम भी मुरीद हो जाएंगे। दूसरे दिन जनाब की दावत की गई, औरत ने भुना हुआ मुर्गा बनाया बगैर शोरबे वाला, एक गहरे प्याले में नीचे मुर्गा, ऊपर से चावल, चावल से उसे छुपा दिया, ढक दिया, दस्तरखान बिछा करके आगे बढ़ाया और अपने शौहर से कहा कि खबरदार आज तो कुछ नहीं बोलेगा। कहा बिल्कुल नहीं बोलेगा। दस्तरखान लगा दिया गया, देखा जनाब उधर से चले आ रहे हैं धूम बराबर आए। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। एक बार प्याला देखा, निगाह उठा के, अबे जुम्मन कहाँ हो तू? अबे खाली भात खिलाएगा? अबे सिर्फ चावल पे दावत दी है, बस इतना कहना था। क्या हुजूर आज हम कुछ बोल नहीं सकते, चप्पल से मारेगी। अबे तो सिर्फ चावल खाऊंगा, बस इतना कहना था कि अंदर से औरत झाड़ू लेकर निकली और डिस्को की खोपड़ी पल्ले फटाकर 50 झाड़ू उसने गिन करके बरसाए और कहा धोखेबाज, अबे प्याले का मुर्गा नहीं देखा। निगाह उठा के, अबे जुम्मन कहाँ हो तू? अबे खाली भात खिलाएगा? अबे सिर्फ चावल पे दावत दी है, बस इतना कहना था। क्या हुजूर आज हम कुछ बोल नहीं सकते, चप्पल से मारेगी। अबे तो सिर्फ चावल खाऊंगा, बस इतना कहना था कि अंदर से औरत झाड़ू लेकर निकली और डिस्को की खोपड़ी पल्ले फटाकर 50 झाड़ू उसने गिन करके बरसाए और कहा धोखेबाज, अबे प्याले का मुर्गा नहीं दिखता, काबे का कुत्ता कैसे दिख गया? कैसे कैसे धोखेबाज घूम रहे हैं,
कैसे कैसे फराडी घूम रहे हैं, मगर कुर्बान जाओ बरेली के इमाम के, कुर्बान जाओ इमाम अहले सुन्नत के। आला हजरत ने इन्हीं घुसपैठ करने वाले पीर और धोखाधड़ी फकीरों की गुदड़ी हो करके घूमने वाले इन नकली पीरों की सरको भी फरमाई है और इरशाद फरमाया है। इमाम गजाली का कानून इमाम अहमद रजा की जबान पर जू बोलता है। ए लोगों, हवा में उड़ने लगे तो खबरदार उसे वली मत समझ लेना। अब पीर की पहचान तो ये है कि उसका सर झुकता हो खुदा की बारगाह में और दिल झुकता हो मुस्तफा की बारगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज जैसे पीर थे वैसा ही अकीदतमंद उनका मुरीद था। प्याला देखा, रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। और इतना छोटा सा मेरे ख्वाजा का सागर, इतना बड़ा सागर और ये छोटा सा सागर, मगर जैसे ही प्याले में झांका तो कहीं ऐसा तो नहीं कि झांकते ही गरीब नवाज की विलायत की गहराई नजर आने लगी, गरीब नवाज के करामत का समंदर नजर आने लगा। प्याला लेकर आगे बढ़ो और जैसे ही पहुंचता है देखता क्या है कि पृथ्वीराज के सिपाही अपनी पूरी बंदूक ताने हुए अपने पूरे शानो शौकत के साथ तमतराफ के साथ खड़े हैं। इस तरह खड़े हैं, इस तरह खड़े हैं कि काबे से निकाले गए थे जितने बुत, ऐसा लगता है सब यहीं आकर के खड़े हो गए। न हरकत है न हिस्स है, लेकर के चला गुलाम अपने आका का हुक्म। जानता था मेरे ख्वाजा ने भेजा है, कोई दुनिया की ताकत बाल बेका नहीं कर सकती। मेरे ख्वाजा ने भेजा है, अब मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकर के चला और प्याले को उसने डुबोया और डुबो करके कहता है अना सागर चल, तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया, चल तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। यहीं रुक कर रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। राजस्थान के मुसलमानों, यूं तो राजस्थान में तालाब बहुत कम है, लेकिन जब तुम्हारा गुजर किसी डैम से या किसी तालाब से या किसी नदी के किनारे हुआ है तो कभी तालाब से भी तुमने अस्सलाम अलैकुम किया है? कभी कोई बात की, कभी कोई गुफ्तगू सुनी? कुछ नहीं ना। आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे हो, पानी को समझाने के लिए अक्ल की जरूरत है, सुनने के लिए कान, जवाब देने के लिए जबान। भला पानी हमारी जबान को क्या समझेगा? पानी तो पानी है, हम हैं इंसान। मगर मुरीद जानता था कि ये पानी मेरी जबान को समझे या न समझे, गरीब नवाज की जबान को जरूर समझता है, मेरे ख्वाजा की जबान को जरूर समझता है। और इसलिए समझता है कि वो जबान गरीब नवाज की नहीं है, हमारी जबान गरीब नवाज की होती है। उस पर इरशाद मुस्तफा का हुआ करता। सुभान अल्लाह, सुभान डुबोया प्याले को और डुबोना था जनाब के पूरा आना सागर उसी में सिमट आया। तारीख अजमेर गवाह है कि सिर्फ गरीब नवाज के प्याले में आना सागर ही नहीं आया था, बल्कि अजमेर के तमाम कुएं खुश्क हो गए थे, बकरियों के थनों से दूध भी खुश्क हो गया था। पृथ्वीराज अपने महल में परेशान हो गया, पूरे अजमेर में अलतश का माहौल पैदा हो गया, डामाडोल होने लगी उसकी बादशाहत। कहीं ऐसा न हो कि गरीब नवाज के इस इख्तियार के सामने पूरा अजमेर घुटने टेक। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। सारे लोग अपने को सर्वस्व सुजूद कर दें और इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाएं। फौरन अपना फालतू जादूगर भेजता है पृथ्वीराज, बैठा क्यों है, जा। गरीब नवाज ने करामत का सुदूर फरमाया है, उसके मुकाबले में तू भी कोई अपना कमाल दिखला दे, तू भी कोई अपना करतूत दिखला दे, तू भी जादूगिरी का कोई करिश्मा दिखला दे। पृथ्वीराज का हुक्म पाते ही जोगी जयपाल दौड़ा गरीब नवाज के दरबार में आता है। एक ख्वाजा, पूरे अना सागर को अपने प्याले में तूने समेट लिया है, हम भी बाकमाल हैं, हम भी कमाल दिखलाना चाहते हैं। गरीब नवाज की ज़बान हाल कहती है नादान, मेरे पास इतनी फुर्सत कहाँ जो हम तेरा कमाल देख लें। जिस गरीब नवाज की आंखों में नबी का जमाल बसा हो, उसे इतनी मोहलत कहाँ है जो बैठ करके तेरा कमाल देखे। हाँ हाँ, तू कमाल दिखलाने के लिए आया है, दिखला। मैं देखूं न देखूं, जमाना देख ले, मेरे गुलाम देख ले, मेरे चाहने वाले देख ले। इतना कहना था कि पृथ्वीराज जमीन छोड़ करके उड़ा और उड़ते 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 इतनी दूर गया कि जो असहाब बैठे थे कहने लगे हुजूर बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? कहा हुजूर इतनी दूर चला गया है कि नजर ही नहीं आता। अल्लाह अल्लाह, ए सुजानगढ़ के सुन्नी मुसलमानों बोलो, वो ऊपर उड़ करके गया था। गरीब नवाज को क्या चाहिए था? निगाह ऊपर करके एक बार देखते कि कहाँ तक गया, मगर कुर्बान जाओ विलायत की निगाह मेरे ख्वाजा ने ऊपर नहीं देखा, नीचे देखा।
اوپر نہیں دیکھا، نیچے دیکھا اور اپنے قدموں سے نالین باہر کی. ارشاد فرمایا نالین ذرا دیکھ تو وہ کہاں تک اڑ کر کے گیا، ذرا دیکھ وہ کہاں تک اڑ کر کے گیا ہے. اللہ اللہ، غریب نواز کا ارشاد تھا میرے روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. یہ بڑی بلندی پر آسمان میں فضاؤں میں تیر رہا تھا. فوراً نالین گئی اور جے پال کی کھوپڑی پر پٹافٹ سٹاسٹ ہمیں اتنی چوٹ ماری، اتنی چوٹ ماری، اتنی چوٹ ماری، اتنے جوتے لگائے، اتنے جوتے لگائے، اتنی چوٹ لگائی کہ جے پال کے سینے میں جتنے کفر کی کھوٹ تھی سب ختم ہو گئی. دماغ میں جادوگری کا جتنا طلسم تھا اس کے ایک ایک تار ٹوٹ گئے. نیچے گرا اور جیسے ہی گرتا ہے غریب نواز کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے. خواجہ کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر دیجئے، کلمہ پڑھا کر کے حلقہ بگوش اسلام کر دیجئے. غریب نواز کی زبان حال کہتی ہے نادان، ارے ابھی تو اڑ رہا تھا، ابھی تو مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا، یہ اسلام کیسے نظر آنے لگا، یہ دین کیسے نظر آنے لگا. جو بھی جے پال لوٹ کر کے قدموں پہ عرض کرتا ہے میرے خواجہ یہ تو کمال آپ کی نالین مبارک کا ہے. اس نالین نے میرے سر پر اتنی چوٹ لگائی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جس غریب نواز کی نالین میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، سرا اس غریب نواز کے وجود میں کتنی طاقت عطا کی ہوگی. اور جب دنیا یا رسول اللہ، اور جب دنیا غریب نواز کے وجود کا جواب نہیں لا سکتی تو دنیا غریب نواز کے لائے ہوئے پیغام کا جواب کہاں سے لا سکتی ہے، غریب نواز کے دیے ہوئے دین کا جواب کہاں سے لا سکتی ہے. مگر اے دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا اور مولانا محمد روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. سلام علیکم یا رسول اللہ. مگر دوستو میں ایک رونا بھی رونا چاہتا ہوں. غریب نواز کی کرامت سننے میں تو بڑا لطف آتا ہے، غریب نواز کے عنایات کے چرچے سننے میں تو تمہیں بڑی لذت ملتی ہے. مگر اے سنی مسلمانوں، ذرا ایک بات سچی دل سے سن کر کے اس کا جواب دینا حقیقت کی روشنی میں کہ آج ہمارا دشمن، آج ہمارا مخالف یہ کہتا ہے کہ یہ سنی چادر تو چڑھاتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، عرس تو کرتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، رات بھر یا غوث کے نعرے تو لگاتا ہے مگر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کی آواز تو بلند کرتا ہے. خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کی آواز تو بلند کرتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا. اے سنی مسلمانوں، اب ذرا سچی بات بتانا کہ کیا تم جس غریب نواز کا نعرہ لگاتے ہو، کیا تم جس غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے کی آواز بلند کرتے ہو؟ کوئی بھی اللہ کا ایک بھی ایسا ولی تم نے دیکھا جس نے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی؟ نماز تو نماز، سنت چھوڑ دے تو ولی نہیں ہو سکتا. تاریخ سنت روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. تم پیرانے طریقت کے چاہنے والے ہو، جس نے جب نماز پڑھنا شروع کیا ہے تو ایک عشاء کے وضو سے 40 سال تک غوث اعظم نے نماز ادا فرمائی ہے. نہ غریب نواز نے نماز چھوڑی، نہ محبوب الہی نے نماز چھوڑی، نہ صابر کلیری نے نماز چھوڑی، نہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے نماز چھوڑی، نہ سیدنا سرکار اعلی حضرت نے نماز چھوڑی، نہ سرکار مفتی اعظم نے نماز چھوڑی. اور سنو، مفتی اعظم کی بات آتی ہے تو مجھے کہنے دیا جائے، آج کل کے پیروں کا حال سننا ہے بعد میں سننا. آؤ بریلی کے شہزادے امام احمد رضا کے نور نظر، لخت جگر، شبیہ غوث اعظم سیدنا سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ نے پہلی بار ہوائی جہاز کا سفر فرمایا. بمبئی کے ہوائی اڈے پر اترے، مریدین حضرت کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. اور جب بڑے لوگ کوئی بہت اچھا کام کرتے ہیں، یعنی اچھے کام سے مطلب پیر صاحب کو جب کوئی اچھی سواری پہ بٹھال کر کے اپنے یہاں بلاتے ہیں تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بس پیر صاحب جنت کا ٹکٹ یہ نکال لے اور دے دے. کچھ ایسے لوگ بھی کھڑے تھے، سرکار کی بارگاہ میں دستبوسی کی اور ایئرپورٹ ہی پہ پوچھنے کے حضور کیسا لگا ہوائی جہاز کا سفر؟ پہلی مرتبہ حضرت نے ہوائی جہاز کا سفر فرمایا. اللہ اللہ، اس دولت مند نے یہ سوچا ہوگا کہ بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والے نے ہوائی جہاز کی سفاری کی ہے، بڑا مجھے انعام ملے گا، بڑے اچھے القاب و آداب ملیں گے، میری رئیسی پر مہر لگائیں گے اور میری دولت پر ہمیشہ ہمیشہ لیے. روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. کر کے فرمایا اچھا لگا. مگر بڑے صاحب کو اس سے تسکین نہیں ہوئی، فوراً کہتے ہیں ایسے جی اور مالدار صاحب کے حضور اچھا تو لگا، کس معنی کر اچھا لگا؟ یعنی وہ یہ سننا چاہتے تھے کہ جہاز بہت بڑھیا تھا
इसका सीट बड़ी, इसकी सीटें बड़ी अच्छी थी, उसमें खाने का इंतजाम बहुत बढ़िया था। मैं जैसा मजबूर आदमी हवाई जहाज पर बैठ गया, वो ये सुनना चाहता था। दोबारा फिर पूछता है, हुजूर किस माना कर अच्छा लगा? चेहरे पर सुर्खी के आसार जाहिर हुए। आरिफे बिल्लाह थे, मर्दे कामिल थे, वली अल्लाह थे, सुभान अल्लाह। आसार जलाल के तारी होते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मुझे हवाई जहाज का सफर इसलिए अच्छा लगा कि मैं कलकत्ते से चला बम्बई पहुंच गया और एक वक्त की नमाज कदा नहीं हुई। सुभान अल्लाह। दुनियादार पीर की निगाह दौलत पर हुआ करती है और फकीर की निगाह रज़ाए इलाही पर हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, तुम ऐसे पीराने तरीकत के चाहने वाले हो और उसके बाद अगर हमारा दुश्मन ये कहता है कि ये सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते तो कितने अफसोस की बात है। यही तो दुनिया कहती है, ये बरेलवी नमाज नहीं पढ़ते, ये उर्स वाले नमाज नहीं पढ़ते। नमाज छोड़ो तुम, बदनाम हो आला हजरत। नमाज छोड़ो तुम, बदनाम हो गरीब नवाज। नमाज छोड़ो तुम, बदनाम हो गौसे आजम। ए सुन्नियों, अगर वाकई तुम सच्चे आशिक हो, वाकई अगर तुम सच्चे दीवाने हो, तो आज ये फैसला करके उठो कि सुन्नी जो बात नबी के दरबार में कहता है और जो दावा नबी की बज़्म में करता है, उसकी दलील मस्जिद में जाकर के दे दिया करता है। इसलिए कि जो सुन्नी होता है वो इसी हसरत में जीता है कि दिल का नजराना नबी की बारगाह में और सर का नजराना खुदा की बारगाह में। सुभान अल्लाह। ए सुन्नी मुसलमानों, नमाज पढ़ो और मिल्लत के नौजवानों से रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। बुढ़ापे में क्या पढ़ोगे दोस्तों? रुकू में जाओगे तो कमर में दर्द, सजदे में जाओगे तो घुटने में दर्द। अरे ऐसी नमाज भी कोई नमाज है? आओ आओ, जवानी के आलम में सजदा करो। ये उम्र है शबाब के लम्हात में परवरदिगार आलम की बारगाह में सर्व सुजूद होने के। और मैं तुम्हें बताता हूँ, जब एक नौजवान अपने रब की बारगाह में सजदा करने के लिए चलता है, अपने गुनाहों से ताइब होकर के परवरदिगार आलम की बारगाह में झुकने के लिए मस्जिद की तरफ रवा व दवा होता है, तो परवरदिगार आलम की रहमत मुतवज्जे होती है और इरशाद फरमाता है परवरदिगार आलम, ए फरिश्तों देखो, एक नौजवान मेरी बारगाह में सजदा करने के लिए आ रहा है, एक नौजवान मेरी बारगाह में झुकने के लिए आ रहा है, एक नौजवान मेरी बारगाह में सजदा करने के लिए आ रहा है। ये जवान है। जवानी कहती है चल शराब खाने की तरफ, जवानी कहती है चल जुआ खाने की तरफ, जवानी कहती है चल कुमार खाने की तरफ, जवानी कहती है चल बज़्म हुस्न की तरफ, जवानी कहती है चल बज़्म तरफ की तरफ। लेकिन इसने अपनी जवानी के तमाम तर ख्वाहिशात को ठोकर मार करके मेरी बारगाह में झुकने का फैसला कर लिया है। ए फरिश्तों, जाओ अपने रब का पैगाम मेरे बंदे को सुना दो कि मेरे बंदे, आज तूने मेरी बारगाह में अपनी ख्वाहिशात को ठोकर मार के झुकने का इरादा कर लिया है। जा, अभी तेरा सजदा मुकम्मल नहीं हो पाएगा कि तू जो मांगेगा तेरा रब तुझे अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। ए मिल्लत के नौजवानों, आज रोना है कि बाबरी मस्जिद हाथ से चली गई। हमें तुम नमाज पढ़ते रहते तो कितनी मजाल थी जो हाथ से चली जाए। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। पढ़ने पर आते हो तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अपना निजाम बदल देती है। आओ हमारे साथ कलकत्ते की सरजमीन पर चलो। कलकत्ते में ईद की सबसे बड़ी जमात कलकत्ते के रेड रोड पर होती है और कलकत्ते की रेड रोड का आलम ये है कि आपके मजमे की लंबाई जितनी है, इस फंक्शन की जितनी लंबाई है इस मजमे में बैठे हुए लोग की, जस्ट समझ लो कि इसका डबल कर दो तो उस रेड रोड का बनवे है। एक वक्त 6-6, 7-7 टैक्सी उसके बनवे पर अपनी पूरी बर्क रफ्तारी से दौड़ती है। किस कदर कुशादा सड़क है। जैसे ही ईद की चांद का ऐलान होता है, रूयत का इजहार होता है और ये ऐलान किया जाता है कि कल सुबह को ईद की नमाज होगी, कहना नहीं पड़ता बंगाल की गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी और कारपोरेशन के लोग अपना दमकल और झाड़ू लेकर के उस रेड रोड पर आ जाते हैं। झाड़ू लगाया जा रहा है, झाड़ू हो गया, अब दमकल से उस सड़क को धोया जा रहा है। इधर भी लाल बत्ती है, इधर भी लाल बत्ती है। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। यातायात बंद कर दिया गया है, आमद और रफ्त बंद कर दिया गया है। अब कोई गाड़ी इधर से गुजर नहीं सकती। 1 किलोमीटर का रास्ता पैक कर दिया जाता है और
उस पर दमकल लेकर के पानी से उसको पाक और साफ किया जा रहा है। पूछो बंगाल की गवर्नमेंट से सुबह को यहाँ कौन आने वाला है, क्या प्राइम मिनिस्टर आएगा? ये तमाम किसके लिए है? जवाब मिलेगा नहीं। ये तमाम किसके लिए है? हेल्थ मिनिस्टर आएगा? जवाब मिलेगा नहीं। फॉरेन मिनिस्टर आएगा? जवाब मिलेगा नहीं। क्या कोई और देश का महान शख्स आएगा? जवाब मिलेगा नहीं। फिर इन सड़कों पर झाड़ू क्यों लग रहे हैं? इन्हें पाक क्यों किया जा रहा है? बंगाल की गवर्नमेंट पुकार करके कहेगी इन सड़कों को इसलिए पाक किया जा रहा है कि सुबह को नबी का गुलाम यहाँ सजदा करने के लिए आएगा, यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आएगा, यहाँ नमाज ईद अदा करने के लिए आएगा। मुझे कहने दिया जाए, जब तुम ईद की नमाज पढ़ने के लिए सड़कों पे उतर जाओ तो बंगाल की गवर्नमेंट को अपना निजाम बदल देना पड़े, अपने ट्रैफिक का उसूल बदल देना पड़े, अपने यातायात का दस्तूर बदल देना पड़े, तो मुझे कह लेने दिया जाए जिस रोज भारत का 25 करोड़ मुसलमान जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा, उस रोज दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा होगा और दिल्ली की जामा मस्जिद पर इस्लाम का झंडा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान तिरंगे झंडे के नीचे हम मुल्क की वफादारी का ऐलान करेंगे और इस्लाम के झंडे के नीचे हम नबी की वफादारी का ऐलान करेंगे। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। करम के नक्शे कदम पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के हबीब का कितना हंसी मजार है, अल्लाह के हबीब का कितना हंसी मजार है। अब मौसम हो कोई मगर रहता वहाँ बहार है, मौसम हो कोई मगर रहता वहाँ बहार है, मौसम हो कोई मगर रहता वहाँ बहार है। और इसके रसूल में डूबा हुआ बन समाज फरमाइए। मरने के बाद अभी मेरी आंखें न बंद हो सकी, मरने के बाद भी मेरी आंखें न बंद हो सकी, क्योंकि रसूल पाक के आने का इंतजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। आंखें न बंद हो सकी, क्योंकि रसूल पाक के आने का इंतजार। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह के हबीब का कितना हंसे मजार है, मौसम हो कोई मगर रहता वहाँ बहार है।